gases के बारे में. Okay, so another thing that you will find in your chemical reaction is the various gases that are present. So in PCGST, it was a G for gas. The gas can be the question it can be asked whether it is formed. What are the characteristics for a gas? If it is getting formed in a solution में अगर वो बनता है, so in that case we will see bubbles. effervescence word बोलते हैं, जहां पर नीचे से बुलबुला उठता रहेगा. ठीक है, क्योंकि गैस बना है. जस्ट लाइक पेप्सी का बॉटल अगर आप देखिएगा या कोई सोल्यूशन में देखिएगा तो बबल्स आपको दिख रहे होंगे. तो जहां जहां गैस के फॉर्मेशन हो रहा होगा, अगर वो डिजोल्व नहीं कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है, तो वो बबल्स के फॉर्म में निकलता है. बबल्स भी वर्ड लिख सकते हो, effervescence भी लिख सकते हो. गलत मत लिखिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू राइट द रॉन्ग थिंग. So layman language, bubbles will be formed. कब? जब solution में बन रहा है. For example, when zinc reacts with H2SO4, so this H2SO4 is a solution, isn't it? So if you take a test tube, add some zinc granules to it, you will see bubbles. Why bubbles? Because solution के अंदर बन रहा है. This is a bubble. But suppose तुम solid से start कर रहे हो. For example, calcium carbonate, heating calcium carbonate, it forms CO2 gas. यहाँ कोई bubbles नहीं दिखेगा. Bubbles आपको दिखता है only when there is a solution, there is a liquid. So here what we like, we will say that a colorless gas is evolved which turns lime water milky, which extinguishes a glowing splinter. That is the thing that we have to write. Please don't write bubbles here. Okay. So यहाँ पर हमारे सामने जो gases generally हमारे सामने जो आए हुए हैं, in general जो हैं वो ये हैं. पहला H2 गैस आया हुआ है. H2 gas NCERT में कहां यूज हुआ है? I have tried to jot it down for you. कर्ल यहाँ पे burns with a pop sound. जब भी आप देखोगे एक सोल्यूशन था जहां पे जिंक प्लस H2SO4 डाला गया. There was a solution, soap solution. आगे एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे. सोप सोल्यूशन बना, बबल्स उठे, बबल्स अच्छे से बने रहे, इसीलिए सोप सोल्यूशन लिया गया. नॉर्मल वाटर में बबल पॉप आउट कर जाएगा, तो बबल्स मतलब फट जाएगा एक तरीके से. तो बबल्स उठाओ एंड देन वहां पे अगर आप कोई भी कैंडल या कोई भी स्प्लिंटर लगाओगे तो वो क्या होगा? पट से आवाज करेगा. ठीक है. सो बिकॉज वहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? कंबशन हो गया. सो इट बम्स द पॉप साउंड. कलरलेस ऑडरलेस गैस है, इसलिए आपको ध्यान रखना है. नाउ कहां में देखा है? देखिए प्रिपरेशन में अगर आप देखोगे जहां जहां हमको एनसीईआरटी में दिख पा रहा है वो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. हमें पता है कि ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. ब्राइन इज NaCl, है ना, प्लस सम इंप्योरिटी रहते हैं हम लोग, लेकिन NaCl को ही मानते हैं. When we're talking about brine solution, so brine solution में हमारा क्या अवस्था है? इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो NaOH बच जाएगा. कैथोड पर H2 गैस निकलता है और एनोड पर Cl2 गैस निकलता है. तो ये वाला H2 और Cl2 वहां आ गया. Then we have some acid plus some metal. So we have metal like any metal which is above hydrogen, except कई जगह पे lead हम नहीं कर पाता. It does not react, it forms a coating. तो हटा दीजिए उसको. पर हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे आपने जिंक यूज कर लिया, आप आयरन भी यूज कर सकते हो. तो ऐसे केस में H2 गैस निकलता है. और वैसे केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है. यहाँ पे H2 को हम लोग बोलते हैं we should not use H2. We should not use H2 in presence of some oxidizing agent. Now problem क्या है? वहां पर H2O बन जाएगा. Now इस क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? Can we use nitric acid? Can we use nitric acid or concentrated H2SO4 in concentrate नहीं है बेटा, डायोड है, रखिएगा. Concentrated वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. So can we use nitric acid or concentrated H2SO4 in this reaction in the preparation of hydrogen? Answer is no. Why no? This is clearly because hydrogen is a reducing agent. These concentrated nitric acid and another thing is concentrated H2SO4. Both are oxidizing agents, so they will react. इस पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन के आता है. वो क्या है कि HNO3 से कौन से दो लोग, two metals which can form hydrogen gas. Now याद रखिए this is very very dilute HNO3 है, and there are two elements, magnesium and manganese.
यही दो लोग हैं जिसको हम पढ़ते हैं, दे कैन फॉर्म नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व. इन ऑल अदर केसेस इट इज नॉट गोइंग टू इवॉल्व. और डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट है. अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो भी नहीं निकलेगा, हमेशा H2O निकलेगा, H2 नहीं निकल सकता. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन while giving illustration about reducing behavior we have this reaction, है ना. मेटलर्जी वाले पार्ट में आप देखे होंगे, वहां पर रेडॉक्स में लिखा होगा ऑक्साइड से कॉपर बनाना या मेटल बनाने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ता है. तो वहां पर भी CuO प्लस H2 का रिएक्शन हमें दिखेगा, है ना. CuO प्लस H2 ये आपको हीट करोगे तो हमें Cu प्लस H2O, सॉरी H2 नॉट H2O, H2 आपको H2O मिल जाएगा. ठीक है. कॉपर ऑक्साइड एक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज एग्जांपल भी हो जाएगा, हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है, lies below the hydrogen in activity series, therefore it can be displaced by hydrogen gas. So that is the very important reaction. ठीक है, converting metal oxide to metal. Okay, this is important. Another thing that is written CO plus H2 to H2 at 340 atm. ये कहां मिलेगा? चैप्टर नंबर 1 में ही आपके रिएक्शन दिया हुआ है, जहां बैलेंसिंग वाला पार्ट दिया वहीं पे रिएक्शन भी दिया हुआ है. ऐसा तो बहुत कम चांसेस है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे लीव दिस थिंग एंड वी कैन, मतलब वहां पे क्वेश्चन आ जाए तो हमें ध्यान रखना होगा. CO plus 2H2 340 atm will give you CH3OH. बैलेंस हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ आई थिंक बैलेंस है भी. ठीक है, क्लियर है. तो ये वाला रिएक्शन भी हमारे कोर्स में है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में. सो मेहनत करके यही काम किया है कि बहुत सारी चीजों को एक साथ क्लब करने की कोशिश की है. अभी भी कुछ ये छुट्टी होंगी, बट एक आपको एक अच्छा खासा पैकेज जैसे यहां पे मिल जाएगा. देन क्लोरीन गैस इज ग्रीनिश येलो. ठीक है, नाउ इस पॉइंट को याद रखिएगा, इट्स ग्रीनिश येलो. इसका मतलब क्या हो गया, ये कहां मिलेगा पहले, तो यहां पर दो जगह पे मेंशन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में आपको दिखेगा, और एक एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी दिया हुआ है, CH2 plus Cl2 will give you 2HCl. ये भी आपका है. ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको मिल जाएगा. तो कभी आपको मान लो कलर लिखना भी हुआ तो आप लिख सकते हो, 2-3 जगह आपको मिलेगा, इसलिए ये वाला चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और कहां मिल सकता है, AgCl आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी आपने देखा था कि जब आप सनलाइट डाल रहे हो तो आपका Ag बन रहा था, विच इज द सिल्वर गे प्लस Cl2 गैस ही बनेगा. ठीक है ना. तो ये 3 जगह मेरे ख्याल से, और बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, दो एक हो सकता है एक छूट गया, पर ये 3 जगह आपको दिया गया है और आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. तो क्लोरीन गैस के बारे में पूरे एनसीईआरटी में कहां कहां दिया गया, उसमें से ये 3 जगह मुझे दिखा भी, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है. सो ये रिएक्शन भी कवर अप कर रहा है, एक्टिविटी भी कवर अप कर रहा है, और आगे भी करेंगे, एक एक सारे एक्टिविटी पूरा सॉल्व करेंगे. बिफोर द एग्जामिनेशन वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द एक्टिविटीज, विल रिवाइज ऑल द एक्टिविटीज, कैसे क्या करना है. ठीक है, तो बाकी आप पढ़ते रहिएगा, आपको डेफिनेशन याद करना, आप याद जरूर से कीजिए, रिएक्शन याद कीजिए, बाकी कुछ चीजें मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगा, एक्टिविटी सारा कर प्रैक्टिस करा दूंगा. ऑक्सीजन गैस, ये आपको दिखेगा ही दिखेगा. इट इज अ कलरलेस गैस दैट सपोर्ट्स कंबशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. भाई गैस निकला, कौन सा गैस है ना, आता है एग्जांपल A gives B plus C and so on. नाउ यहां पर ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन बर्निंग कंबशन. तो कॉम्बिनेशन या बर्निंग बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो आप ऐड करते हो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड. बर्निंग या कंबशन रिएक्शन में आप जलाते हो, अल्टीमेटली वही काम कर रहे हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हो. ऑफ मेटल्स मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल्स. बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आप इसको जब जलाओगे तो प्रोडक्ट विल बी CO2 and H2O. अल्कोहल जलाओगे तो भी आएगा. फोटोसिंथेसिस में भी आपको ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है. तो ये कुछ जगह है जहां पे ऑक्सीजन के बारे में मेंशन किया गया है. तो ऑक्सीजन इज अ गैस, तो आपको पता ही है, जनरली आप लोग मतलब हड़बड़ा के इसको गलत मत लिख दीजिएगा. इट इज अ गैस, कलरलेस गैस है, ज्यादा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं कलर दिख रहा हो तो आपको लिखेगा. ये एक जगह और है जहां पर आप इस तरह का रिएक्शन भी आपको मिल सकता है व्हाइल बैलेंसिंग. लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 गैस. इस चीज को याद रखिएगा, हमें इस तरह से यहां पे देखना है.
क्लियर? क्लियर? This is important for us to understand. Now, CO2 gas, the most common gas that you will get is CO2 gas. जनरली आपके जो क्वेश्चन आता है उसमें जो ये बी सी एंड सो ऑन, तो वहां पर CO2 गैस जनरली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लियर? तो यहां पर CO2 गैस जो है वो आपको बहुत कॉमन है. जब भी क्वेश्चन आएगा ए गिव्स बी सी ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है, इन जनरल आपको CO2 गैस जनरली आपको दिखेगा, उस क्वेश्चन में वन ऑफ द आंसर हो जाता है ना. तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर करो, बेकिंग पाउडर से स्टार्ट हो सकता है, वॉशिंग पाउडर से स्टार्ट हो सकता है, वॉशिंग सोडा बेसिकली, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो भी आप बोल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को हीट करो तो क्या होगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होगा, इस सब जगह पे आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या कार्बोनेट्स इन्वॉल्व है, तो CO2 गैस निकलने के चांसेस यहां पर हैं. याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे CO2 नहीं निकलता है, वो कुछ होता ही नहीं उसको. ठीक है, ये चीज दिया ऐसे नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है. हीट करिएगा तो नो डिकम्पोजिशन, बोलिए मेल्ट कर जाता है. तो ये एकमात्र क्या बोले, ये एक इंपॉर्टेंट कार्बोनेट है जो हीट करने पर डिकम्पोज नहीं करता है. ठीक है, ऐसे और भी हैं, पोटेशियम कार्बोनेट भी है, लेकिन हमारे कोर्स में यही है. ठीक है, कोर्स भी मतलब ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पर आपको CO2 गैस निकलता है और ये बन जाता है. तो बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो याद रखिएगा आपका मेटल कार्बोनेट, खासकर सोडियम बाइकार्बोनेट का हीटिंग इंपॉर्टेंट है, कोर्स हमारे कोर्स में है. ये आपको क्या देता है, Na2CO3 बनता है प्लस H2O, बिकॉज एक H है तो बनेगा H2O बनेगा और CO2 यहां पे ऑन हो जाता है. और ये आगे टूटता तो है नहीं, मेल्ट होता नहीं है, मतलब मेल्ट ही कर जाएगा, टूटे फूटेगा है नहीं, तो आपका ये प्रोडक्ट होता है. ये कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्राइन सोल्यूशन में ये सब आ जाएगा, है ना. तो ये सारे पार्ट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है. तो हम लोगों ने ये 4 गैसेस हमने देख लिया. NO2 एक और गैस बचा हुआ है जो हमें देखना है, और मीथेन भी गैस होता है, लेकिन उसके बारे में ऐसा कुछ ज्यादा दिया नहीं है. एक जगह दिया है, कंबशन रिएक्शन में दिया हुआ, इट इज अ कलरलेस गैस, तो हमें ध्यान देना होगा. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बस ये है कि हमारे पास रेडिश ब्राउन गैस हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स में हमारा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है. बाकी अगर कोई गैस होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे. लेकिन CH4 भी गैस है, इथेन भी गैस है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है. बस ये कलरलेस गैसेस हैं, याद रखने की जरूरत है. कंबशन रिएक्शन में पूछ सकता है तो इथेन इज अ गैस, सॉलिड लिक्विड नहीं है, याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में जब पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो क्या आएगा, जैसे एडिंग KI टू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. अगेन आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा सॉल्ट प्लस सॉल्ट आपका हमेशा ही डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. ठीक है, इट्स अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कैटायन एनायन को आपको इंटरचेंज कर देना है. ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकता है. तो यहां पे एसिड प्लस बेस या बेसिक सॉल्ट होगा, तो ये भी आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. और यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन भी बोल देते हैं. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये वर्ड तो हमारे कोर्स में है ही है, बिकॉज चैप्टर ही हमारा सेकेंड चैप्टर उस पे आने वाला है. ठीक है, नाउ दिमाग बैठा के रखना है, इस तरह क्वेश्चन जब आएगा तो हमें क्या लिखना है. तो पहला चीज समझ में आता है कि इसे KI लेड नाइट्रेट, तो हमें समझ में आ गया. यहां पर क्लियरली लेड नाइट्रेट हमने पढ़ लिया, तो यहां पे क्या होने वाला है, लेड नाइट्रेट सही से लिखिएगा. तो ये वाला पार्ट क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है. तो ये क्या बनेगा, PbI2 बनेगा. So once you've written PbI2, precipitate is there, it is yellow colored precipitate is there. We have to understand this thing and we will get 2KNO3. Please balance it accordingly. यहाँ पे aqueous हो जाएगा because solution form में हो रहा है. तो ये भी आपका aqueous है और ये 2 times हो जाएगा, ये भी aqueous. So this is a balanced reaction. What we should write is simply yellow colored precipitate is formed and second is the color, या बोल सकते हैं कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म. इतना लिख लिया. रिएक्शन अच्छे से याद है तो फटाफट लिख लीजिएगा, नहीं याद है
पीबीआई कर दिया या कुछ और कर दिया, लेड नाइट्रेट में 2 गायब कर दिया, अगर ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में अभी तक नहीं बैठ पाया तो प्लीज उसको फालतू का मत लिखिएगा, नंबर पेनाल्टी हो जाएगा। मतलब या तो याद कर लीजिए, याद नहीं हो पाया तो गैस मत कीजिएगा आलतू फालतू चीज, आप लिख दीजिएगा येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, तो भी आपको नंबर जो है मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, बट बैलेंस रिएक्शन लिखना सबसे अच्छी बात होती है, बिकॉज फिर एग्जामिनर के पास पूरा रहता है कि आप मतलब सब कुछ जानते हो। ठीक है, यहां पे भी यही हो जाएगा। अगेन आपको पता है ये कलरलेस सोल्यूशन है, एक्वस है। यहां पर आपका के आई अगेन कलरलेस सोल्यूशन है, इसलिए लिखवा दिया था पहले। बट व्हाट यू विल सी AgI विच इज अगेन अ येलो प्रेसिपिटेट। और आपको इसका स्टेट लिखना हो तो प्लीज इसको सॉलिड लिखिएगा, एंड यू विल गेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट अगेन विच इज एक्वस में डिसॉल्व फॉर्म में है। सिमिलरली देखिए यहां पर ये वाला एनसीईआरटी के एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पर भी आपको देखना है एक सॉल्ट है, दिस इज अनदर सॉल्ट, तो इट विल फॉर्म व्हाट, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, क्लियर। हियर आल्सो व्हाट, अमोनियम सल्फेट इज एल्यूमिनियम सल्फेट दिया हुआ है, मान लीजिए अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है, यहाँ पे शायद अमोनियम दिया हुआ है, एनीवे अमोनियम सल्फेट मान लीजिए यहाँ पे है, तो अमोनियम सल्फेट अगर मान लो ले रहा हूं, आई थिंक अमोनियम सल्फेट ही था उसमें, अगर ये भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट उसमें सॉल्युबल होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा सल्फेट इस तरह से। अगर आपने अमोनियम लिया तो एल्यूमिनियम होगा तो Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा, प्लस बेरियम क्लोराइड। अगेन देखो इसका नेगेटिव पार्ट इसका पॉजिटिव पार्ट लेके BeSO4 बना दिया, और कुछ करना ही नहीं होता, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है, एंड यू विल गेट व्हाट 2LH4Cl। ओके, सो क्लियरली अगर इस तरह से जा रहा है तो आप बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग कि आपको क्या रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, इज डू यू नो दैट यू हैव फर्स्ट थिंग दैट यू हैव रेड इज रिएक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या आप लास्ट मोमेंट में जब आपसे पूछ रहा हूं तो क्लियर कट पता है या फिर अभी भी आप गेस कर रहे हो, बिकॉज क्लास 11th इज मतलब वहां पे बहुत डिमांडिंग हो जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे, उन्होंने लिस्ट बना के रखा हुआ है, जैसे एडिंग KI इन AgNO3 अगेन सेम रिएक्शन हो गया, अमोनियम सल्फेट इन बेरियम, हाँ हम लोग पहले डिस्कस कर लिए। यहां पर हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है बेस, और यहां पर क्या हुआ अमोनियम सल्फेट आयन इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सॉल्ट क्या करता है, इट इंट्रोड्यूसेस एन आयन, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड से आपका बेरियम इंट्रोड्यूस हो रहा है। रिएक्शन क्यों बन रहा है, सिंपली बिकॉज वी नो दैट, इसके बारे में पता है, इसका रिएक्शन में पता है, एक ही तो रिएक्शन में पढ़े ही है, और ये है अमोनियम सल्फेट। तो अगेन आपको ये ठीक से पता है, क्या पता है, ये सॉल्ट है तो ये आयन ला रहा होगा, तो इसका ये वाला पार्ट इसका ये वाला पार्ट मिलके एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करने वाला है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरियम सल्फेट आपका ऐसे हो जाएगा एंड 2NH4। तो क्लियर कट इंफॉर्मेशन यहां पर है, प्लीज मतलब आप इसको समझिए अच्छे से, क्लियर कट इंफॉर्मेशन यहां पे दे रहा है। पहले बार से मैं बोल रहा हूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ही इंपॉर्टेंट हो गया बेरियम सल्फेट, तो ये जो जितने भी रिएक्शन आप देख रहे हो वो बेरियम आयन और सल्फेट आयन दोनों जब भी दिखेंगे साथ में तो प्रेसिपिटेशन होगा, वही आपके कोर्स में भी है। एडिंग एल्यूमिनियम सल्फेट टू बेरियम क्लोराइड, अच्छा पहले भी कर लिया, एल्यूमिनियम भी होगा तो भी वही आपका आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, सो हाँ, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन का बेसिकली आप क्या करोगे, कैसे स्टार्च को आप मतलब कैसे जो आपका ग्लूकोज है वो पार्ट को कैसे आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, कैसे एनर्जी निकल रहा है, ये रिएक्शन दिया हुआ उसको अच्छे से आपको लिख लेना है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, तो एक पूरा सेक्शन दिया हुआ जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इंपॉर्टेंस दिया हुआ और एग्जांपल्स दिया हुआ, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ let us start with the activities that is there in your book. So the first activity that we are going to talk about is this activity. It is magnesium ribbon को हम लोग burn करते, burning of magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in the watch glass.
आपने ऑलरेडी देखा हुआ है एक्टिविटी ये है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, ये क्वेश्चन आ गया आपको। तो यहां पर क्या कीवर्ड्स हैं, पहला कीवर्ड क्या होगा, इट इज dazzling white light से बहुत चमकता है, dazzling white light, ओके। सो चमक बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत तेज, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। सो इट्स अ पाउडर फॉर्म विच इज अगेन व्हाट, इट इज ऑक्साइड है, पाउडर फॉर्म है, और ये आपका व्हाइट कलर होगा। तो अगेन ऑब्जर्वेशन में इस क्वेश्चन में आ जाएगा। क्लियर कट लिखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होगा, बट आपको फुल मार्क्स गारंटी हो जाएगा अगर आप ध्यान देकर कर रहे हो, ठीक है। जो 25 मार्क्स के आसपास जो आने वाला है वो 25 मार्क्स पूरा पूरा मिल जाएगा, बस ध्यान रखिए इसमें कैसे करना है, ओके। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। व्हाइट सॉलिड आपका बन रहा है, जैसे व्हाइट सॉलिड ना, सॉलिड फॉर्म में, क्लियर है। सो वी हैव क्या है, कोई भी ऐसा या तो बर्न ऐसा बना के रख दे, या फिर आपसे पूछ रहा है सीधी एक्टिविटी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको फटाफट ये लिख देना। देयर आर टू कीवर्ड्स, व्हाइट लाइट से dazzling व्हाइट लाइट है, दूसरा है व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म, क्लियर। यू कैन राइट द रिएक्शन आल्सो इफ इट इज रिक्वायर्ड, Mg plus O2 will give you what, MgO, बैलेंस इट। ये देखिए आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है, ये अगेन आपका सॉलिड है, बैलेंस करना होगा तो 2 टाइम्स करोगे, इसको भी 2 टाइम्स कर लो, बैलेंस हो गया। दिस इज अ व्हाइट सॉलिड, खत्म। एक्टिविटी नंबर 1 फिनिश, क्लियर। एक्टिविटी नंबर 2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड पोटेशियम आयोडाइड। आगे हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्लियरली लेड नाइट्रेट है। अब आपका ये वाला पार्ट जब आपका KI से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, PbI2 बनेगा, विच इज सॉलिड, प्रेसिपिटेट कर रहा होगा, येलो कलर सॉलिड है ये, और KNO3 बनेगा तो 2KNO3 हो जाएगा। सो इस रिएक्शन में आपको सिर्फ रिएक्शन ध्यान रखना है। आपको मैंने कलर ऑलरेडी बता दिया, देखो सोल्यूशन है पार्ट है ना, तो ये क्या होगा, कलरलेस सोल्यूशन है, ये भी कलरलेस है, मैंने बताया था आपको। सो बोथ आर कलरलेस एंड वी आर गेटिंग सम येलो सोल्यूशन, तो एकदम क्लियरली डिस्टिंक्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियरली विजिबल टू अस, दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। व्हाट यू ऑब्जर्व क्लियरली, this is our observation, this is our observation that a yellow colored precipitate is formed, a yellow colored precipitate is formed। ये activity 1.2 है, that's all, that is what we require। correct balance reaction, correct आपका यहां पर जो आपका state along with correct आपका यहां पर कलर होना चाहिए। हाँ, आप ये लिख सकते हो लेड आयोडाइड, इसको नाम भी लिख सकते हो, लिखना भी चाहिए, इनफैक्ट आप जरूर से लिखिए, दिस इज माय लेड नाइट्रेट, ओके, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज लेड आयोडाइड, दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। Okay, so this is what is there, that is what we have to learn from the activity 1.2, clear। next is activity 1.3। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जिंक ग्रैन्यूल्स है और आपका क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज, देखो अगेन मैंने आपको बोला भी था, देखिए ध्यान दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट डाइल्यूट। concentrated acids are strong oxidizing, concentrated H2SO4 are strong, is a strong oxidizing agent, so it will react with H2 to form H2O। तो हमें ऐसा कोई भी चीज नहीं बनाना है, कोई भी चीज नहीं रखना है जो मेरा इस H2 को कंज्यूम कर ले, बिकॉज रिएक्शन मेरा वही है। dilute one is a normal acid, so we will write like this। so zinc granules, granules क्यों यूज करते हैं,
The granules are basically, they are very small pieces, so they have large surface area. छोटे छोटे particles होंगे, they have large surface area. Because of the large surface area, their reaction will be fast. So please understand, chemical reaction occurs on the surface, so it requires a large surface area for faster reaction. Okay, so chemical flask is there. We have this thing. Hydrogen gas is going to pass through it. What is the reaction that we have? Clearly, we have zinc solid, which was solid initially, zinc granules, plus H2SO4. Please clearly mention it as dilute. It is very, very, very important. It will form zinc sulfate. Again, it is a solution form, isn't it? Solution form, which is the colorless. We have discussed earlier also. So we have to learn all the colors that I have already mentioned. This is aqueous, that means dissolved form, plus H2 gas, which is also colorless, is evolved. The arrow should point up, so that it is a gas, it is going to move up and out. So this is the activity for you. In this activity, we have what we have learned. This reaction is what? The reaction type is a displacement reaction. It is a displacement reaction. Here, a metal displaces a non-metal hydrogen. So it can be a non-metal displacement. Another thing that we can say that it is a redox reaction. So this is the first thing that we have to write. Redox reaction is also there. So no doubt it is a redox reaction, in which you can see that H2 is produced, zinc is getting what? It is getting oxidized. So here, in this case, this is acting as a reducing agent. This is acting as an oxidizing. You can argue, sir, अभी आपने बोला कि H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, अभी आप ये क्या बोल रहे हैं? Only one thing to understand that ये H2SO4 H2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. हाँ, इस मेटल से रिएक्ट करने के बाद ये रिएक्शन रिडॉक्स है, इसीलिए यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है. पर अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड होता तो ये इसके साथ भी रिएक्ट कर जाता, एंड द प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट. इट विल बी जिंक सल्फेट प्लस H2O प्लस SO2. दैट इज अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, भूल जाइए. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन तो हो ही रहा है. मेटल से रिएक्ट करने वाला कोई भी रिएक्शन लोगे, कोई भी यहां पर सिंगल एलिमेंट फॉर्म में है, रिएक्शन मस्ट बी रिडॉक्स. इन एनी रिएक्शन, if one of the species is in elemental form, मतलब ये जैसे एलिमेंट के फॉर्म में है, O2 H2 एलिमेंट के फॉर्म में, H2 यहां पे, that has to be redox reaction. क्लियर है, एकदम क्लियर कट, इट हैज टू बी redox reaction. ओके, सो redox reaction होगा. अगर वो इस तरह से पूछते हैं तो बैलेंसिंग करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है. हाँ, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट. दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है ना? तो यहां पर टच करने की बात हो रही है फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. याद रखिएगा, स्लेट लाइन, ये कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, और स्लेट लाइम इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओनली. Okay, now this reaction is always exothermic. So acid base reaction is generally exothermic. Burning या reaction with oxygen is also exothermic. और यहां पे भी आपका exothermic reaction. So this is a reaction. यहां देखिए टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? You have to report in terms of temperature. So it is an exothermic reaction. So what you will observe? The beaker will become hot. Okay, the reaction is there. Beaker will become hot. What is the product? What is the product? It is going to form CaOH whole twice, calcium hydroxide. Reaction CaO, always metal oxide plus water. It is going to form calcium hydroxide only. Okay, calcium hydroxide only. Clear? This is my quick line. This is my slate line. That is the overall reaction that we should talk about. और कुछ इसमें है नहीं. याद रखिएगा, यहां पर एक्सोथर्मिक सेंस की बात हो रही है, एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5.
यहां पर दो बातें हैं. They have taken what? They have taken ferrous sulfate. This is very important activity. Very important. बहुत चांस है कि ये आपके कोर एग्जामिनेशन में आ जाएगा. It is a ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. ये आप देखिएगा, ये सॉलिड फॉर्म में आपने लिया हुआ है. Note the color of ferrous sulfate crystals. अगर crystals वर्ड बोल रहा है तो we are talking about greenish form. ठीक है. क्रिस्टल फॉर्म में FeSO4.7H2 होता है. आप heat the boiling tube over flame of a burner spirit lamp as shown in figure. इतना observe the color of crystal after heating. So एक तो दो तरीके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हल्का सा ये टिल्ट किया गया है और नाक को दूर रखा है. ड्राफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज. कभी भी ऐसे नहीं सूंघा जाता है, वो डेंजरस हो सकता है. हमेशा आप ऐसे रखिए और जो भी सूंघना है हाथ को ऐसे करते रहिए ताकि जो वेपर्स उठ रहे हैं थोड़े से आपके नाक के अंदर आए. इज द करेक्ट मेथड. ठीक है. डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ boiling tube at your neighbors or yourself. Basically important है. Now reaction क्या हो जाएगा? Reaction we know it very well. This reaction talks about what? Ferrous sulfate reaction है. Clearly it is what? When you're heating this ferrous crystal, तो ये बन जाएगा 7H2 है, हट जाएगा. आप इसी से स्टार्ट कीजिए. इसी से लिखा हुआ है Fe2O3 plus SO2. There are two gases that are going to evolve, SO2 and SO3 gas. Both are colorless gases. Okay, इसका इसको भी लिख सकते हैं. Both are colorless gases. ठीक है. और ये आपका रेडिश ब्राउन हो जाएगा. This is your reddish brown. ठीक है. It is a reddish brown. बैलेंस करने के लिए आपको 2 टाइम्स कर दोगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. दिस इज सॉलिड क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स बोल रहा है तो हम लोग भी टॉकिंग अबाउट ग्रीन विट्रियल क्रिस्टल. तो ये आपका ग्रीनिश फॉर्म में आता है. ठीक है. तो क्या होगा कलर? यू कैन सी द कलर चेंज. रेडिश ब्राउन हो जाएगा एंड टू गैसेस आर रिवॉल्व. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी 1.5. तो रिएक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए. हो सकता है बैलेंसिंग फॉर्म में आ जाए, हो सकता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बन के चला आए, हो सकता है यहां पर आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो बनते आता है या फिर हॉट्स क्वेश्चन में उसमें भी आ जाए. अगर आप डायरेक्टली लोगे तो क्या होगा? आप जल सकते हो. गैसेस कभी कभी डेंजरस होती हैं. अगर वो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में चल जाए तो आपको मतलब आपका हेल्थ कंडीशन खराब हो सकता है. तो इस तरीके से कभी भी गैस होता है, कोई बॉइलिंग होता है तो आपको ऐसे नहीं देखना है. हमेशा ऐसे रखना है, दूर रखना है. और अगर हल्का सा देखना भी मतलब फील करना है, नाक में ले जाना है तो हाथ हल्का हिलाइए, आपको मतलब इसका सेंस हो जाएगा. Okay. Sir, do the gases produce pungent odor? Yeah, they are gases having pungent odor. Okay, SO3 and SO2 have pungent odor. We are colorless gases having, they are not colorless, they are not odorless, they are having a pungent odor. Okay, ये SO2 जो होता है वो burning sulfur की तरह बिहेव करता है. Sir, CO2 does not have pungent odor. हाँ, CO2 नहीं, CO2 तो colorless gas है, odorless gas. Also CO का भी नहीं है, right? हाँ, CO भी नहीं. कुछ ही गैसेस हैं आपके उसमें, आपको जो पंजेंट मतलब क्या होगा, थोड़ा सा जो स्ट्रांग होंगे, बेसिकली चोक करना शुरू करें. देखो ये सब CO2 नहीं करता. ये सब क्या है? ये सब वो लोग हैं जो नाक में जाने के बाद मॉइस्चर बनेगा तो एसिड बना लेंगे और आपको बहुत इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और इनके ऑर्डर भी थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है. ठीक है. बट CO2 कितना वीक है कि कंपेयर टू दीज, वो हमारे ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है, बॉडी में है, वो तो दिक्कत नहीं करता. एनीवे, एक्टिविटी 1.6. एक्टिविटी 1.6 is all about lead nitrate powder in a boiling tube. Heat the boiling tube. Again, you can see the reactions. ये एक्टिविटी 1.0 that I'm talking about. यही पे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. याद रखिएगा, रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट. इसको याद रखिएगा. लेड नाइट्रेट, वहां पर बैलेंस करने जाओगे तो भूल जाओगे. इसको 2 टाइम्स कर देना, बस इतना याद रखोगे तो अपने आप हो जाएगा. 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2. अब लेड नाइट्रेट का अगर आप देखोगे तो व्हाइट सॉलिड बेसिकली आपको नहीं रहेगा.
PbO का जो कलर होता है वो येलो, मतलब बेसिकली कूल पे होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश फॉर्म हो जाता है जब आप उसको हीट करते हो, ठीक है। NO2 का आपको रेड वेपर्स, रेडिश ब्राउन वेपर्स आपको मिलता है। ये आपका कलर के बात हो जाएगा। गैस, दो गैसेस निकलते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, टू गैसेस आर फॉर्म, टू गैसेस आर फॉर्म, ठीक, इन द रेशियो 4:1 बैलेंस आ रहा होगा। ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है, येलोइश कलर इसका होता है, ठीक है। कलर फॉर्म बात करोगे येलोइश कलर होगा, येलोइश व्हेन आपका ये हॉट कंडीशन में ज्यादा हीट करोगे तो वो ब्राउनिश फॉर्म चला जाता है, ऐसे वो येलो कलर हम लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे NO2 आपको दिख रहा है, वन ऑफ द फ्यू रिएक्शन यहाँ पे NO2 आपको दिखेगा। एक्टिविटी 1.6, what do you observe? Question, note the change if any, note the change, note down the changes if any. So you will see all the color changes here. यहाँ पे effervescence मत लिख दीजिएगा, effervescence का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्लियर है चलो। So I hope you have understood. We'll start with next session में हम लोग बाकी जो activities है we'll start from there. इसके आगे बहुत सारे activities हम लोग और करेंगे, we'll try to finish it off. So